So after the discussion of that, instantaneous velocity, average velocity, instantaneous acceleration and average acceleration in two dimension or in a plane, we have to find out here the equation of motion for an object traveling in a plane with uniform acceleration. Means कोई object है that will be moving in a plane with uniform acceleration. With uniform acceleration, then you have to find out here the equation of motion for that object in a plane. You are already watched in the previous videos, or you are already familiar with the equations, that is v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, and v square equal to u square plus twice s. These are the kinematical equations. So these equations are again taken in the rectilinear motion but not in the vector form, because the direction of the object moving in a rectilinear motion or performing the translational motion, the direction is along the straight line path. Motion कैसी थी? along the straight line path, इसलिए यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में इक्वेशन अपन ने नहीं लिए थे. लेकिन वही ऑब्जेक्ट if it will be moving in a plane, so we need there the two axes, that is the x axis and the y axis, and we have already calculated here the two components of the average velocity, average acceleration, instantaneous velocity and instantaneous acceleration. Same performance we have to perform here in a plane. So for example, if suppose u is the initial velocity of the object moving in a plane and at the time suppose t equal to 0, मीन्स मोशन जब स्टार्ट हुई तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसीडर किया अपन ने u, और जिस समय मोशन स्टार्ट है उस समय का टाइम क्या बोले अपन ने 0, एंड v बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन आफ्टर टाइम हाउ मच t, कितने टाइम के बाद आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी कितनी, फाइनल वेलोसिटी v. सो एवरेज एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्या बोलते हैं अपन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम कितना लिया अपन ने, जब वेलोसिटी v थी तब t, और इनिशियल टाइम क्या लिया था अपन ने, जब वेलोसिटी u कंसीडर की तब 0 मीन्स t माइनस 0. इफ यू गेट हियर acceleration equal to v minus u upon t. On solving this, at is equal to v minus u. So therefore, this final velocity v equal to u plus at. This is the equation of motion of an object in a plane to calculate the velocity of that object. Now acceleration is what? Uniform. Acceleration कैसा है? Uniform है. So therefore, to determine the displacement, we have to take the average velocity. क्या लेना पड़ेगा अपने को? Average velocity. So here average velocity is equal to, या v average equal to final velocity plus initial velocity divided by 2, दोनों का एवरेज निकाल रहे हैं अपन. ठीक है? एवरेज वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए? क्योंकि एक्सलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है मींस कॉन्स्टेंटली स्पीड उसकी चेंज होते जा रही है. सो देयरफॉर टू डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करना है अपने को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी का क्या लेना पड़ेगा, मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. जैसा वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो फ्रॉम दैट इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम. वही फार्मूला यहां पर अप्लाई कर रहे हैं अपन. सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, v प्लस u बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय t. ओके, बट ऑलरेडी यू हैव डिराइव्ड दैट v इक्वल टू व्हाट, u प्लस at. So this becomes what? इस v के जगह पे पुटअप कर रहा हूं मैं u प्लस at प्लस u डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम t.
दिस u प्लस यू कितना हो गया, ट्वाइस u, ओके, प्लस at डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय t। डिनोमिनेटर सेपरेट करता हूं, साथ में टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू ट्वाइस u मल्टीप्लाइड बाय t डिवाइडेड बाय 2 प्लस 80 इंटू टी, दैट इज 80 स्क्वेयर अपॉन 2। दिस 2 get cancelled, means you get here s equal to ut plus half 80 square. Okay, so in this way, this is the formula to determine the displacement of the object in a plane. Displacement of the object in a plane, that is s equal to ut plus half 80 square. जैसा रेक्टिलिनियर मोशन में था अपना v equal to u plus 80, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या था, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, इस यहां पर अपन ने वो इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में नहीं लिए थे, यहां पर अपन ने वो इक्वेशन काय के फॉर्म में लिया है, वेक्टर फॉर्म में लिया है। अब ये प्लेन में के इक्वेशन हो गए, इसका मतलब फिर से जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट्स रहेंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस एक्स, अलोंग द वाई एक्सिस दूसरा। डिस्प्लेसमेंट के भी दो कंपोनेंट मिलेंगे अपने को, अलोंग द एक्स एक्सिस एक कंपोनेंट रहेगा, अलोंग द वाई एक्सिस दूसरा कंपोनेंट। तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट लेता हूं मैं अलोंग द एक्स एक्सिस इन द स्केलर फॉर्म, vx इक्वल टू ux प्लस axt, और अलोंग द वाई एक्सिस vy इक्वल टू uy प्लस ayt। इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर a, दिस इज इक्वेशन नंबर b। उसी तरह से इस डिस्प्लेसमेंट के भी दो कंपोनेंट लो अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन द स्केलर फॉर्म, sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर c, एंड sy इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay t स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर d। ठीक है, यहां से देखने पे क्या दिख रहा है अपने को, इक्वेशन a और इक्वेशन c दोनों को अगर कंपेयर करते हैं अपन, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी and this is the equation for the displacement when the object is moving along the x axis. मीन्स ऑब्जेक्ट अगर प्लेन में मूव हो रहा है लेकिन कौन सा एक्सिस के क्रॉस जा रहा है, वो ओनली एक्स एक्सिस के क्रॉस जा रहा है, तो एट दैट टाइम टू कैलकुलेट द वेलोसिटी along the x axis we will use the equation vx equal to ux plus axt, और along the displacement निकालना है तो क्या आएगा, sx equal to uxt plus half axt स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट y एक्सिस के क्रॉस जाता है तो डिस्प्लेस वेलोसिटी निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन यूज जाएगा अपना, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। मींस इंडिपेंडेंटली दोनों इक्वेशन कैसे रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। वहां पे अगर अलोंग द एक्स एक्सिस निकालना है तो यूज दिस वन फॉर वेलोसिटी एंड दिस वन फॉर डिस्प्लेसमेंट। अलोंग द वाई एक्सिस मोशन निकालना है प्लेन में तो वेलोसिटी के लिए ये इक्वेशन यूज करो, और डिस्प्लेसमेंट के लिए ये। मींस उस समय जो एक्स वाई एक्सिस के क्रॉस अगर मोशन अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस समय एक्स एक्सिस के क्रॉस के कंपोनेंट उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे, और अगर एक्स एक्सिस के क्रॉस की मोशन निकाल रहे हैं तो वाई एक्सिस के क्रॉस के कंपोनेंट उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे। अब ये जो इक्वेशंस है अपने को, इट इज मोस्ट यूजफुल फॉर द मोशन इन अ प्लेन, जो अपन इसके बाद में पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें डिफरेंट इक्वेशंस निकालना है अपने को। तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन में ये इक्वेशंस की अपने को जरूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो रहेगी फिर से इट इज इन अ प्लेन। जैसा तुमको एक सादा एग्जांपल बताया था कि बॉल थ्रोन बाय द अस इन द एयर, ठीक है, तो इट विल बी फॉलो द कर्व पाथ लाइक दिस, दैट इज द ट्रेजेक्टरी। तो उस ट्रेजेक्टरी के ऊपर जब बॉल मूव होगा तब उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हाइट निकालना है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो उस समय अपने को इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में तुम you have studied in the rectilinear motion the relative velocity, जिसमें the velocity of object A is suppose VA, velocity of the object B is suppose VB. So relative velocity of object A with respect to B is equal to, क्या लिया तुमने, suppose relative velocity okay, so VA is the velocity of object A, VB be the velocity of object B, so relative velocity of object A with respect to B, VAB is equal to क्या था अपना इक्वेशन, VA minus VB. This is the formula for relative velocity in
रेक्टिलिनियर मोशन, कौन मोशन में आ गया, रेक्टिलिनियर मोशन में। यहां पर अपन ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में नहीं लिया था क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी रहती थी, वहां पे स्ट्रेट लाइन सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स क्या हो रहे थे, मूव हो रहे थे। बट इफ यू हैव टू टेक दैट रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन, सो VA be the velocity of the object A, VB be the velocity of the object B. So relative velocity of object A with respect to B is equal to vector VA minus vector VB. Vector VA minus vector VB. मीन्स ये प्लेन में अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालते तो उस समय क्या करना है, प्लेन में मीन्स एरोप्लेन में नहीं, किसमें, XY प्लेन में अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालते तो उस समय क्या लेना है इक्वेशन अपने को, वेक्टर फॉर्म में। अब ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए अगर निकालते तो ये हो जाएगा VB माइनस VA। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट रहेगी। जैसा VA 5 मीटर पर सेकंड था या 5I प्लस ट्वाइस J मीटर पर सेकंड है, और VB समझ लो कितना है, थ्राइस I प्लस ट्वाइस J मीटर पर सेकंड। क्योंकि प्लेन में इक्वेशन ले रहे हैं इसलिए अपने को एक्स एक्सिस का क्रॉस का कंपाउंड और वाई एक्सिस का क्रॉस का कंपाउंड लेना पड़ेगा। अगर VA माइनस VB निकाल दो तो क्या होगा, 5I प्लस ट्वाइस J माइनस क्या मिलेगा, थ्राइस I माइनस ट्वाइस J, प्लस है लेकिन ये माइनस के साथ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो दिस बिकम्स 5I माइनस थ्राइस I कितना हो गया, ट्वाइस I प्लस ट्वाइस J माइनस ट्वाइस J, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विथ रिस्पेक्ट टू B कितना आ रहा है, ट्वाइस I। I कंपोनेंट कौन सा एक्सिस के क्रॉस का है, एक्स एक्सिस के क्रॉस का है। मीन्स इस समय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट A with respect to object B is along the x axis. पोजीशन कैसी रहेंगी उसकी, along the x axis। लेकिन VB माइनस VA करते तो सेम आंसर मिलता है क्या, देखो VB माइनस VA करेंगे तो क्या होगा, थ्राइस I प्लस ट्वाइस J माइनस 5I प्लस ट्वाइस J। सॉल्व करो इसको, क्या होगा, थ्राइस I माइनस 5I बराबर है प्लस ट्वाइस J माइनस ट्वाइस J। देखो यहां से थ्राइस I माइनस 5I कितना हो गया, माइनस ट्वाइस I, ये ट्वाइस J 0। यहां पर क्या आया था जब अपना प्लस ट्वाइस I, यहां पर क्या आ रहा है, माइनस ट्वाइस I। यानी क्या बोला था मैंने, VAB मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A विथ रिस्पेक्ट टू B मीन्स VA माइनस VB बोले थे अपन ने, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विथ रिस्पेक्ट टू A मीन्स क्या बोले थे, VB माइनस VA। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा बोला था, लेकिन डायरेक्शन कैसे आएंगी, डिफरेंट आएंगी। तो देखो यहाँ पे अपन ने दो वेक्टर फॉर्म में लेके पहले ये निकाले थे अपन ने VAB, ये क्या मिला अपने को, प्लस 2I मिला था। मीन्स ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव हो रहा है, बराबर है। लेकिन इस VB माइनस VA निकाले तो क्या मिला, माइनस ट्वाइस I मिला। मीन्स डायरेक्शन कैसी होगी, उसकी अपोजिट हो गई, हुई कि नहीं हुई। मीन्स मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या होगा इसका, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 मीन्स 2। इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल कितना आएगा, फिर से 2 आएगा कि नहीं आएगा। मीन्स मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, यहां पर चेंज हो रही है। तो प्लेन में अगर अपन रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं तो उस समय क्या लेना है अपने को, वेक्टर फॉर्म में लेना है। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए भी अपन रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल VA, VB, VC, VD up to VZ be the velocities of that object A, B, C and up to Z. So relative velocity of object A with respect to B means VA minus VB, ठीक है। relative velocity of object B with respect to C लेना है तो VBC equal to VB minus VC, then C की D के साथ मिलाना है तो VCD इक्वल टू VC माइनस VD। चले ऐसे बढ़ते हुए तो क्या आएगा, VYZ इक्वल टू VY माइनस VZ। मीन जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उस ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव वेलोसिटी अपन एक मिक्स से डायरेक्शन में कंसीडर करके निकाल सकते। सो इन दिस वे दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट
इन अ प्लेन और इन 2 डायमेंशन। डिफरेंस रेक्टिलिनियर मोशन का और इसका डिफरेंस इतना ही है कि रेक्टिलिनियर मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी लेते समय अपन ने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिया था, यहां पर क्या के फॉर्म मिल रहे अपन वेक्टर फॉर्म मिल रहे। ठीक है, थैंक यू।